السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ٹھیک ہے. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین ثم آمین. الحمدللہ ہم سورۃ بقرہ کا آغاز کر چکے ہیں. اس کی ہم نے 5 آیات پڑھ لی ہیں الحمدللہ. آج آیت نمبر 6 سے ہم شروع کریں گے. اور ہم نے پچھلی جو آیات پڑھی ہیں وہ مومنین کی نشانیاں تھی، اور آج جو ہم پڑھیں گے وہ کافروں کی اور منافقین کی جو علامات ہیں اور نشانیاں ہیں اللہ رب العزت وہ بیان کر رہے ہیں. تو آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ترجمہ ہم دیکھیں گے الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یقیناً الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا سواء برابر ہے علیہم ان پر انذرتہم آیا آپ انہیں ڈرائیں ام یا لم نہیں تنذرہم ڈرائیں آپ ان کو لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. ختم اللہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے علی ان پر قلوبہم ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم ان کی آنکھوں پر غشاوۃ پردہ ہے ولہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے عظیم بہت بڑا. یہ ہم نے آج الحمدللہ 2 آیات پڑھی ہیں اور اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں بتایا ہے اور اس کی وجہ بھی اللہ رب العزت ساتھ بتاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے روٹ ورڈ. تنذرہم آپ نے ڈرایا ان کو. نون زال را نظر، یہ جو لفظ ہے یہ نظر سے نکلا ہے. یہ تا جو ہے یہ سیغے کی علامت ہے، یعنی کہ یہ بتا رہا ہے کہ کون سا سیغہ. یہ جمع کا ہے، جمع مخاطب کا سیغہ ہے، اور اس لیے اس کو یہ اصل لفظ ہے نون زارا نظر. ختمہ مہر لگا دی. خاتمہ کا روٹ ورڈ بنتا ہے خاتمی. علی سمعہم یہ علا جو ہے حروف جارہ ہے، اس کا روٹ ورڈ نہیں ہوگا، سمعہم کا روٹ ورڈ ہوگا ان کے کانوں پر. سین میم عین سمع. ہم جو ہے یہ جمع کی علامت ہے. علی ابصارہم ابصارہم کا روٹ ورڈ ہے باسوارا بصر، اور ہم جو ہے یہ جمع کی علامت ہے. غشاوۃ پڑتا ہے غین شین یا. عظیم بہت بڑا. عین زوا میم یہ اس کے تھے روٹ ورڈ الحمدللہ. ہم دیکھیں گے اس کی تفصیل مختصر سی. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرایا ہو وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان الذین کفروا یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا. اس کی وضاحت کیا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ 2 آیتیں رسائی یہودی حی بن اخطب
काब बिन अशरफ और उन जैसे दूसरों के लिए नाजिल हुई। हकीकत में कुफर उसकी तालीम या उसके कुछ हिस्से से इनकार करना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है या लेके आए हैं। उलमा ने कुफर की 4 किस्में बताई हैं। एक कुफर जैसे फिरौन ने कुफर किया, वो अल्लाह ताला की ज़ात का दिल और ज़ुबान दोनों से मुनकर था। दूसरा कुफर अल्लाह ताला को दिल से मानना, ज़ुबान से इकरार ना करना, जैसे इब्लीस ने कुफर किया। तीसरा ज़ुबान और दिल दोनों से अल्लाह ताला को मानना, अल्लाह ताला को मानना लेकिन हुक्म ना मानना, जैसे अबू तालिब अहले किताब का कुफर था। चौथा कुफर मुनाफिकीन का कुफर है। मुनाफिकीन का है कि जुबान से सब कुछ कहना और दिल में कुछ ना हो। और जिन्होंने कुफर का रवैया अख्तियार किया यानी कि फारहाना तर्ज अमल अपनाया, उनका उस रंग में इस तरह रंगे कि उनकी पहचान बन गई, वो अपने कुफर में रसीख हो गए। सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, उन पर बराबर है आप उन्हें डराया हो या ना डराया हो, वो ईमान नहीं लाएंगे। इसकी वजाहत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के बारे में खबर दी जो कुफर पे जमे हुए हैं कि आप इस तरह के कुफर उन पर लाजम वसफ बन गया। अब उन्हें कोई कुफर नहीं हटा सकता, लिहाजा आप उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। इन कुफार को दावत का कोई फायदा नहीं, लेकिन हुज्जत कायम हो जाती है। यानी कि यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया जो इंसान दिल से मुनकर हो उन पे असर नहीं होगा आपकी तबलीग का, लेकिन आपको तबलीग देना है उनको, क्योंकि आप पे हुज्जत कायम हो जाए कि हमने अपना जो काम था वो मुकम्मल कर लिया। हमने अपने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का जिम्मेदारी दी थी, हमने उसको पूरा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस आयत का ये मफहूम है। अंजार से मुराद है कुफर, जुल्म और फसाद का अंजाम से डराना। मुसलसल कुफर और अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से उन लोगों के दिलों में हक को कबूल करना खत्म हो गया था, इसलिए वो ईमान नहीं लाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद तमन्ना थी कि वो सब ईमान ले आए। इस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद कोशिश करते थे। आप उनको खिलाते थे इसलिए कि आप पर वाज़िया कर दिया गया कि ईमान ऐसे लोगों को नसीब नहीं है। इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी कौम से जुटलाने पर तसल्ली दी गई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर हसरत ना करें, ना उनके ईमान की उम्मीद और ना उन पर मुलामत करें। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे तो तमाम लोग इस्लाम में दाखिल हो जाए, तो अल्लाह ताला ने उनको खबर दी कि ईमान वही लाएंगे जिनके लिए नेक बख्ती लिख दी गई है, और जिसके लिए बदबख्ती लिख दी गई है वो गुमराह होकर रहेंगे। क्या अंजार छोड़ देने का हुक्म है? इसका माना है नहीं है कि कुफार के लिए अंजार बिल्कुल फजूल है, नहीं, बल्कि मुंजर रोको तो तबलीग का हक अदा करना जरूर सवाब मिलता है। सवाउन अलैहिम में फरमाया उनके हक में अंजार और अदब अंजार बराबर है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि आप अपना काम जारी रखें, लेकिन उनकी जो किस्मत में लिख दिया गया। और एक हदीस का मफहूम है यहाँ पे कि जो तकदीर होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे पैदा होने से भी बहुत पहले लिख दी गई थी। तो तकदीर में इंसान के पहले लिखा होता है कि ये इंसान कैसा होगा, इसकी फितरत कैसी होगी, इसने कौन से
तरफ, यानी कि इस्लाम कबूल करना, मुसलमान होगा, यहूदी होगा, नसारा होगा या कौन होगा, ये अल्लाह ताला ने लिख दिया होता है। और एक सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये सारी तकदीर में लिखा हुआ है तो हम पे फिर सवाब और अजाब का क्यों है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने नेकी और बदी जो है वो दोनों इल्हाम की है इंसान पे। अल्लाह ताला ने दिल और दिमाग दो चीजें दी, और नेकी और बदी इल्हाम की इस वजह से कि हमें पता चल सके कि गुनाह का काम जो है उसका जो अजाब है, अंजाम है, वो बहुत बुरा है, और जो नेकी का काम है, अच्छाई वाले काम है, उसका अजर जो है बहुत ही अच्छा है, और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला आली शान महल अता फरमाएगा इंशाल्लाह। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को किस्मत बेशक लिख दी, लेकिन इंसान को फ्री हैंड, जैसे होता है ना, इंसान को फ्री हैंड कर दिया कि अब वो अगर वो चाहे अपने आप को बदलना चाहे तो जैसे एक हदीस के मफहूम में आता है कि जो तकदीरी होती हैं वो दुआ से बदली जा सकती हैं, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी तकदीर बदल सकता है अगर वो अपने आप को सुधारना चाहे, सीधे रास्ते पे लेकर आना चाहे। अल्लाह ताला उसकी तकदीर में जो लिखा हुआ है, बदनसीबी या बदबख्ती लिखी, अगर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला किसी को हदायत दे और उसकी किस्मत में बदबख्ती लिखी हो। अगर फर्ज करे कोई ऐसी मुश्किलात, परेशानियां या आजमाइश उसकी किस्मत में लिखी हुई है, तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करे तो अल्लाह ताला उसको वो टाल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ताला ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी और उनके आंखों पे पर्दा है, इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीइहिम, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी, अब ईमान उनमें दाखिल नहीं हो सकता। उनके दिलों पर मोहर है, दिल किसी नफामंद चीज को याद नहीं कर सकता। उनके कानों पे मोहर है, कान किसी नफामंद कलाम को नहीं सुन सकते। इसी तरह अल्लाह ताला का कलाम सुनने या याद करने से कासिर हो गए हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ पे रुके और अपना जायजा लें कि हम जब कुरान पढ़ते हैं तो हमारे दिलों में कुछ ऐसा तो नहीं होता कि हम वो कहते हैं कि हाय हमें याद नहीं हो रहा, और हम परेशान हो जाते हैं, हमारे अंदर अजीब सी बेजारी सी हो जाती है। अगर तो वो है तो फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगे, तौबा करें, इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें, क्योंकि ये अलामात इंतहाई खतरनाक अलामात है। अल्लाह ताला के कलाम को सुनते हुए अगर आपका दिल नरम नहीं हो रहा, अल्लाह ताला के कलाम से आपको फायदा नहीं हो रहा, तो ये कुफर की अलामत है। अल्लाह ताला हम सब के दिलों पे अपने कलाम का असर डाले और हमें इस कलाम के जरिए हदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खत्म मुहर का मतलब है ये है कि गुनाहों की कसरत की वजह से दिलों पे रंग चढ़ जाता है, फिर अल्लाह ताला दिल पे मुहर लगा देता है। इसी तरह दिल के अंदर ईमान की गुंजाइश खत्म हो जाती है और कुफर जड़ फैला देता है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, बल तबअल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, बल्कि उनके कुफर की वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। सूरत निसा आयत नंबर 155। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब एक गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक स्याह नुक्ता डाल दिया जाता है, और जब वो गुनाह से बाज आ जाता है, तौबा और इस्तग़फ़ार करता है, तो उसका दिल साफ कर दिया जाता है। अगर वो दोबारा गुनाह करता है तो वो नुक्ता बढ़ जाता है, हत्ता कि वो पूरे दिल पे छा जाता है। और यही वो रंग है जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में किया है, कल्ला बल वाना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, हरगिज नहीं, बल्कि उनके दिलों पर उनके अमाल ने जंग लगा दिया और वो जो कमाते थे। अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन आयत नंबर 14। किस चीज की मोहर
लगा देने का मफहूम क्या है, यानी कि इस यहाँ पे जो मोहर लगाई है उसका मफहूम क्या है। इस बात का यकीन कर लेना कि अब इसके अंदर कोई चीज बाहर दाखिल नहीं हो सकती। बहरहाल यही हाल काफिरों का है। कुफर व जलालत पर इसरार, तकलीद, अबाव में हकाम और गौर फिक्र के सही रास्तों से एराज की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों की ऐसी हालत बना दी, वज़्ब और नसीहत उन पर असर नहीं होती, हक बात उन पे दाखिल नहीं होती। उनकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है जो हर नफा बख्श चीज को देखने के मानी है, और दिल, कान, आंख यही रास्ता है इल्म हासिल करने का। जब ये बंद कर दिए जाए तो उनमें से ईमान लाने की तौफीक नहीं की जा सकती, वरना उनमें से किसी से खैर की उम्मीद की जा सकती है। अल्लाह ताला ने दिलों पे और कानों पे मुहर क्यों लगाते हैं? अल्लाह ताला ने बंदों के तमाम अफ़आल के खालिक होने की हैसियत से उनके दिलों पे मुहर लगाने को अपनी तरफ निस्बत करके ये बतला दिया कि जब लोग हक कबूल करने की सलाहियत और इख्तियार को तबाह करना चाहते हैं तो सुन्नत इलाहिया के मुताबिक हम उनको इस कैफियत में ले जाते हैं कि उनके दिलों पे हवस और यानी कि दुनियावी हवस और लालच पैदा कर दिया जाता है। यानी कि ये गुनाह इस और एक सजा ये भी होती है कि एक गुनाह दूसरे गुनाह को खींच लाता है, जिस तरह नेकी का नकद बदला ये भी होता है कि एक नेकी दूसरे नेकी को खींच लाती है। दिलों और कानों पर मुहर कब लगती है? आखिरत की कामयाबी जिन खसूसियात को अंदर पैदा करने की जरूरत होती है उनको मानने से इंसान जब इनकार करता है तो सोचने समझने की तमाम जराए यानी कि आंखें, कान, दिल सब मुखालिफ की तरफ चल निकलते हैं। फिर कोई बात समझ नहीं आती, फिर उनकी आंखें हक को नहीं देखती, कान हक नहीं सुनते, दिल हक बात को तस्लीम करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। फिर इंसान मुसलसल बुरे अमाल करता है। वाला अब सौरिहिम गुशावतुन, उनकी आंखों पर पर्दा है, इसकी वजाहत करें। यानी उनकी आंखों पर पर्दा ऐसा है कि जो उन्हें फायदेमंद चीजों देखने से रोकता है। गुशावत उनसे मुराद है पर्दा है। हक का इनकार करने के लिए दो बातें ऐसी हैं जो इंसान के रास्ते में रुकावट बन जाती है, तकब्बर, दुनिया की मोहब्बत। ये दो चीजें जो हैं इंसान को हक की पहचान करने से रोकती है। जिस इंसान में तकब्बर होगा ना अपने माल पे, अपनी हैसियत पे, अपने यानी कि आबाओ अजदाद पे, तो वो भी हक जल्दी तस्लीम नहीं करता। फर्ज करें आपका कोई टीचर है, मुझे ही लगा ले, मैं आपकी टीचर हूँ, आपको पता है कि मैं मिडिल क्लास की घराने से हूँ या मैं बहुत ज्यादा लो लेवल की हूँ, तो आपका पढ़ाई का लेवल, आपकी यानी कि फैमिली बैकग्राउंड, आपका यानी कि सर्कल जो भी है आपका बहुत ज्यादा वसी है और बहुत अपर लेवल का है, तो आप मेरी बात को इतनी जल्दी पिक नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर ये होगा कि हम तो अच्छे भले, हम इससे ज्यादा अक्ल व शऊर रखते हैं, हमारा सोशल सर्कल इतना वसी है, तो हम तो ज्यादा जानते हैं ना। इसको बेचारी को क्या पता, घर की चार दीवारी में रह रही है या इतना इसका सोशल सर्कल नहीं है, तो इसको कैसे पता चलेगा? ये हो गया तकब्बर। और दूसरा दुनिया की मोहब्बत में माल भी आ जाता है, औलाद भी आ जाती है और ख्वाहिशात नफ्स भी आ जाता है। अब देखें, इंसान दुनिया की मोहब्बत करता है, उसे ये होता है कि मुझे दुनिया की हर नेमत मिले, हर नेमत मिले। अब जब वो हर नेमत की कोशिश करेगा ना, पाने की कोशिश करेगा, तो वो हक को छोड़ना शुरू हो जाएगा। हक बात अगर हम समझना शुरू करें तो हक बात में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि अपने नफ्स की बात नहीं सुननी, दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी,
ہم نے دنیا کو اتنا ہی استعمال کرنا ہے یا دنیا کے ساتھ اتنا ہی لگاؤ رکھنا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے. ہم نے خواہشات کو بڑھانا نہیں ہے. تو یہ دو چیزیں اللہ رب العزت کے حق کو ماننے سے روکتی ہیں. یہ بڑی وجہ یہ دو چیزیں ہیں. انہی وجہ سے انسان کے اندر مخالفانہ جذبہ جاگ اٹھتے ہیں. مثلا فرض کریں کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ انسان جب اس چیزوں میں پڑ جاتا ہے نا تو اس کے اندر یعنی کہ کوئی حق بات کہتا ہے نا. فرض کریں کوئی آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ حیثیت رکھتا ہے, مالی حیثیت اس کی بہت زیادہ ہے. میں اس کو بار بار فورس کرتی ہوں کہ آپ زکوٰۃ دیں, آپ صدقہ کریں, آپ غریبوں کی مدد کریں. تو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات اٹھنے یعنی جذبات مخالفانہ اٹھنے شروع ہو جائیں گے. یہ اچھی ٹیچر ہیں, ہمیں بار بار اس چیز پہ لے کے آ رہی ہے کہ صدقہ کریں, زکوٰۃ دیں, لوگوں کو غریب لوگوں کی مدد کریں. یہ کیا چیز بات ہوئی؟ تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ اندر یعنی کہ دنیا کی محبت جو ہوتی ہے نا انسان کو اندر سے سخت بنا دیتی ہے. ان کا اندر جو ہے وہ نرمی ختم ہو جاتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو غریب ہوتا ہے, جو ایسے حالات سے گزر کے آیا ہوتا ہے نا, جس نے بہت زیادہ مشقتیں ہوں, پریشانیاں ہوں, مصائب ہوں, وہ کسی کی بات کو جلدی پک کرتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے میں گزار کے آیا ہوں یا میں گزار رہی ہوں, مجھے پتا ہے کہ ایسے زندگی کو گزارنا کتنا مشکل کام ہے. تو ایسے میں وہ جلدی اس چیز کو پک کرتا ہے بنسبت اس انسان کے جس نے یہ چیزیں دیکھی نہ ہو. اسے کیا پتا. اب دیکھیں ایک بندہ بھوکا ہے, اس کو بھوک بہت شدید لگی ہوئی ہے. اب دوسرا بندہ کہتا ہے یار مجھے بہت بھوک لگی ہے. تو جو کھا کے بیٹھا ہے نا, جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے, تو وہ نہیں کہے گا کہ ہاں یار بھوک ہے, آپ کو لگ رہا بھوک ہے. وہ سمجھے گا کہ ابھی لگا ہوا ہے, کوئی بات نہیں, خیر ہے, ٹھہر کے کھا لینا. لیکن جو بھوکا ہوگا نا وہ فوراً اس کی فیلنگ کو اسی ٹائم سمجھے گا کہ ہاں اس کو بھوک لگی ہوئی ہے, اور بھوک میں کیفیت کس طرح کی ہوتی ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھے گا. تو اس لیے جو حق بات سے انکار کرتے ہیں ان کی جو مین وجہ جو ہوتی ہے یہ تکبر اور دنیا کی محبت ہوتی ہے. اور دنیا کی محبت جو ہوتی ہے انسان کے اندر مخالفانہ جذبے پیدا کرتی ہے اور وہ حق کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں. غشاوت کہا گیا یعنی کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. سماعت, بصارت اور قلب ہی وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے علم اور بھلائی کے حصول کی مدد کی جاتی ہے. آپ لوگوں کو میں اسائنمنٹ بھی آج دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ یہ لیسن کے بعد. لیکن یہ جو چیز ہے نا, یہ تین چیزیں سماعت, بصارت اور قلب, یہ ایسی چیزیں ہیں جب ہم پڑھ رہے ہوں ان کو فوکس کر کے رکھیں اپنے لیسن کی طرف تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ہمارے کان سن رہے ہوں, ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہوں, اور ہمارا جو دل ہے اس چیز پہ آمین کہہ رہا ہو کہ اللہ رب العزت نے جو بھی ہمارے دل میں اتارا ہے ہم اس کو قبول کر لیں. سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ مومنوں کی نشانی ہے, اور انشاءاللہ ہم نے بھی اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس چیز کو اپنانا ہے کہ ہم نے جو بھی اللہ تعالیٰ کا کلام سننا ہے ہم نے کہنا ہے سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی انشاءاللہ. ان ذرائع سے فائدہ اٹھانے پر پابندی عائد کر دی گئی, لہٰذا ان سے کسی بلائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی. ان پر ایمان کے دروازے بند کر دیے گئے کیونکہ انہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا. اللہ رب العزت فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور ہم ان کے دلوں کو ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ ان پر ایمان نہیں لائے تھے, اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے. الانعام آیت نمبر 110. یہ دنیا کا عذاب ہے, اور دنیا کا عذاب سب سے برا عذاب یہ ہے کہ انسان کو حق کی پہچان نہ ہو, انسان ہدایت کے رستے سے بھٹک جائے, کہلائے تو اپنے آپ کو مسلمان لیکن اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اسلام ہے کیا, اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے, اسلام ہمیں کتنی محبت کرنا سکھاتا ہے, اسلام ہمیں
दुनिया की हर नेमत से बड़ी नेमत जब तक इंसान तस्लीम नहीं करेगा तो उसे इस्लाम का ना तो मायने पता चलेगा और ना ही इस पे चलने की उन्हें तौफीक होगी। ईमान किन हिस्सों से आता है? ईमान उन लोगों के हिस्सों से आता है जो अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों को सही इस्तेमाल करते हैं। मसलन आंखें कायनात में रब की निशानियां देखे, कान हक बात सुनने के लिए आमादा हो, दिल सच्चाई को कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने हदायत का रास्ता आसान कर दिया। अगर ये मुशक्कतें उठाएं तो अल्लाह ताला उन्हें तौफीक देगा। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वल्लज़ीना जाहिदूना फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। और जिन्होंने हमारी खातिर पूरी कोशिश की, हम उन्हें जरूर अपने रास्ता दिखाएंगे और बिलाशुबा यकीन अल्लाह ताला नेक लोगों के साथ है। अनकबूत वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। इसकी वजाहत ये है कि ये आखिरत का अजाब है, जहन्नम का अजाब है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी की वजह से काफिरों को दिया जाएगा। या अरहमर राहिमीन, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों में शुमार ना फरमाना जिन पर गजब हुआ हो।